In this way, type of hydrolysis in which chief product is ketone, it is referred as ketonic hydrolysis. You have to remember the conditions. What are the conditions? What are the conditions for hydrolysis? For ketonic hydrolysis, hydrolysis with the help of dilute mineral acid like HCl or H2SO4. जब कीटोन एसिटोएसिटिक एस्टर का आप कीटोन के अंदर कन्वर्शन करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेंगे स्टेप। क्या करना पड़ेगा? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ HCl और H2SO4 followed by decarboxylation. So how whole reaction occurs, it is shown here. The overall reaction, it is shown here. The overall reaction is indicated, it is shown in this fashion. Acid to acetic ester, it is hydrolyzed with the help of HCl or H2SO4. This group, how addition of water occurs here, OH, and here addition of H. Okay, in this way H is added here and OH is added here. In this way there will be formation of acetone. Okay, C2H5OH here, ethanol, and remaining here CH3 double bond CO, this CH2 plus H, CH3. So acetoacetic ester on hydrolysis with the help of dilute H2SO4 ACl, dilute hydrochloric acid or dilute H2SO4 CO ester group, it is hydrolyzed to COH group, and when this carboxylic acid it is heated, it undergoes decarboxylation so as to give ketone. You have to remember the condition. What is the reaction condition? Hydrolysis with the help of mineral acid. In ketonic hydrolysis, you have to remember ketonic hydrolysis requires hydrolysis with the help of dilute mineral acid like HCl or H2SO4 followed by decarboxylation. Okay. Next type of hydrolysis is acid hydrolysis. What happens in acid hydrolysis? In acid hydrolysis, here carboxylic acid is formed. Carboxylic acid is formed here. Okay. In this acetoacetic ester, it is boiled with concentrated sodium or potassium hydroxide. Concentrated sodium or potassium hydroxide. Pellets are there. छोटे-छोटे pellets होते हैं NaOH के और KOH के. Followed by hydrolysis with dilute HCl. इसके साथ dilute HCl से भी आपको हाइड्रोलाइज करना है क्योंकि यहाँ पर सोडियम साल्ट तैयार हो जाएंगे और सोडियम साल्ट को हाइड्रोलाइज करने के लिए आपको HCl का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक. What will happen? It will give acetic acid, a carboxylic acid, and ethanol will be formed. Here, acetoacetic ester, it is hydrolyzed with help of concentrated NaOH, heat, followed by acidic hydrolysis. Hydrolysis with the help of HCl. Overall, what is going to happen? Two water molecules are being added here in this fashion. One water molecule will cleave in this fashion. H will be added here and OH here. One CH3COH, one acetic acid molecule, and second acetic acid molecule will be formed in this way. This H is remaining from water molecule, so CH3, and this is COOH. Okay, in this way, for acidic hydrolysis, अगर आपको एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करना है एसिटोएसिटिक एस्टर से, तो क्या करना पड़ेगा? आपको बॉइलिंग करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में या KOH के साथ में और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl. तो ये कंडीशन है एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए. व्हेन एसिटोएसिटिक एस्टर इट इज बॉइल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और KOH, दोनों में से एक लिख सकते हैं, दोनों लिखना जरूरी नहीं है आपको. एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl. डाइल्यूट HCl के साथ में क्यों हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर
सोडियम साल्ट तैयार हो जाएगा। यस, सोडियम साल्ट विल बी फॉर्म। तो सोडियम साल्ट का हाइड्रोलिसिस करने के लिए फाइनली हम डाइल्यूट HCl के साथ में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा आपको? 2 molecules of acetic acid will be formed. Since the product of hydrolysis is carboxylic acid, it is termed as acid hydrolysis. Now, acetoacetic ester is a versatile reagent, universal reagent, very most used reagent for the synthesis of different type of carboxylic acid and ketone. अलग अलग टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप तैयार कर सकते हो या कीटोन भी तैयार कर सकते हो। ये तो पहले बताया जिन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड आपको तैयार करना है तो क्या करना पड़ेगा? यस, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर तैयार करना है तो एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। अगर कीटोन आपको तैयार करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। So the term acetoacetic ester does not mean the synthesis of acetoacetic ester itself, but it represents a general procedure for the synthesis of carboxylic acid and methyl ketones starting from acetoacetic ester. सिर्फ इसका प्रिपरेशन नहीं है, बहुत सारी चीजें एसिटिक एस्टर से हम बहुत सारी चीजें, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इवन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दे may also be synthesized using this. तो पहले ये देखते हैं हम कि कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग टाइप के डायल्किल एसिटिक एसिड या मोनोअल्किल एसिटिक एसिड इस तरह से तैयार करते हैं। तो रिएक्शन of the appropriate alkyl halide with sodium acetoacetic ester use alkyl acetoacetic ester. This is called as alkylation. Alkylation किस तरह करते हैं देखते हैं। Suitable alkyl halide, तो अल्किल हाइड्स के साथ में रिएक्शन करने से पहले हम सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन करेंगे। अल्किल हाइड में R ग्रुप आपको अटैच करना है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसके लिए पहले आपको ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम बता चुके हैं कि ये हाइड्रोजन एटम जो है एसिडिक है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? ये बेस सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। सोडियम इथॉक्साइड के साथ में ट्रीटमेंट करने के बाद ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहाँ, ठीक है। C2H5OH एक जगह पर बताना चाहिए था, दोनों जगह पर बता देंगे। C2H5OH माइनस C2H5OH, ठीक है। तो सोडियम साल्ट यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल जाएगा और सोडियम साल्ट तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये सोडियम साल्ट को हम फर्दर रिएक्ट करते हैं अल्किल हाइड के साथ, क्या हो जाएगा? ये R ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक रहेगा अल्किल हाइड के ऊपर, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। RBr के अंदर में इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। Br is more electronegative as compared to alkyl group, therefore it will have delta negative charge and this will have delta positive charge, therefore this anion will attack on alkyl group, ठीक है। इसलिए alkyl group के ऊपर इसका अटैक होगा, ठीक है। in this way alkyl acetoacetic ester it is formed. Now hydrolysis of this alkyl acetoacetic ester with dilute HCl and heating gives ketone. हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस अल्किल, ये जो अल्किल एसिटिक एस्टर को हम डाइल्यूट HCl और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl फॉलोड बाय हीट, ठीक है। डाइल्यूट HCl फॉलोड बाय हीट अगर कर रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पर इस तरह से HOH का एडिशन हो जाएगा, ये इसका यहाँ पर
ये ग्रुप हटकर यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये CO2 पूरा की पूरा रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, CO2 पूरा रिमूव हो जाएंगे और ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मेथिल एथिल कीटोन आपको मिलेगा, मेथिल एथिल कीटोन। ठीक है, now hydrolysis with concentrated NaOH and acidification to the carboxylic acid। ठीक है, इसका ही है, अगर हम ये क्या है, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ये अल्किल साल्ट का अगर अल्किल डेरिवेटिव जो है इसका जो अल्काइलेशन से फॉर्म हो चुका है। ठीक है, इसका हम कार्बोक्सिल इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करें, एसिड हाइड्रोलिसिस यानी क्या, NaOH फॉलोड बाय HCl दोनों के साथ हाइड्रोलाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये केस के अंदर में क्या फॉर्म हो, कीटोन फॉर्म हो, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड NaOH followed by treatment with HCl. Two water molecules will be added here. How they are shown, ये याद रखना जरूरी किस तरह से हो रहा है, तो क्योंकि ऐसे याद रखना मुश्किल है रिएक्शन, लेकिन अगर हम ये स्प्लिट अप वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से हो रहा है वो अगर आप याद रख रहे हो तो प्रोडक्ट असाइन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट किस तरह से बनाए जा रहे हैं आपके आसानी के साथ में समझ में आए। ठीक है, एसिटिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल CH3COH और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल OHH। ये क्या बचा, एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल हो गया, अब दूसरा RCH2 और ये COH। ठीक है, अल्किल एसिटिक एसिड। ठीक है, और उसके साथ में क्या बचा, ये इथेनॉल। ठीक है, इस तरह से अल्किल एसिटिक एसिड आपको तैयार करना है, तो दो स्टेप के अंदर में तैयार होगा। पहले स्टेप के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, कीटोन तैयार करना हो या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करना हो, तो पहली स्टेप के अंदर पहली स्टेप क्या रहेंगी, उसका सोडियम साल्ट तैयार करना। ठीक है, सोडियम साल्ट तैयार हो गए, सोडियम साल्ट तैयार होने के बाद फिर आपको देखना पड़ेगा आपको कीटोन तैयार करना है या कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करना है। कीटोन तैयार करना है तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करना है तो एसिड हाइड्रोलिसिस आप करेंगे। ठीक है, now repeating steps 1 and 2 with alkyl acetic acid ester which still has a replaceable hydrogen atom gives asymmetric dialkyl acetone or dialkyl acetic acid. The alkyl halide may be same as the first one or different RBR। ठीक है, कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए अपन। ठीक है, इसके अंदर में अगर आपको और एक अल्किल ग्रुप ऐड करना है, वही बताया जा रहा है यहाँ पर, एक और अल्किल ग्रुप आप ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार आपको इसको सोडियम साल्ट तैयार करना पड़ेगा। सोडियम साल्ट तैयार करने के बाद फिर एक बार यहाँ पर एनायन बन जाएगा। ठीक है, वो एनायन को आप रिएक्ट करेंगे सिमिलर फैशन इसके साथ में, आरबीआर के साथ। आरबीआर के साथ में रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर डाइअल्किल एसिटिक एसिड एस्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो डाइअल्किल एसिटिक एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको डाइअल्किल एसीटोन या डाइअल्किल एसिटिक एसिड मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर बताया गया है एसिटो एसिटिक एस्टर एक स्टेप के अंदर में, उसके बाद आरबीआर, ये स्टेप को स्किप किया गया है यहाँ पर, ये स्टेप यहाँ पर, और उसके बाद ये डाइअल्किल डेरिवेटिव, एच नहीं रहेगा यहाँ पर, डाइअल्किल डेरिवेटिव तैयार हो जाएंगे। डाइअल्किल डेरिवेटिव को आप डाइल्यूट HCl के साथ में हाइड्रोलिसिस कर रहे हो फॉलोड बाय हीट, यानी ये क्या है, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद CH3CO और ये CH2R। ठीक है, CH2 सॉरी CH, ये हाइड्रोजन आइटम को हमने रिप्लेस किया, इसको भी रिप्लेस किया, इसलिए 2 हाइड्रोजन आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगे, सॉरी 2 अल्किल ग्रुप्स यहाँ पर अटैच होंगे, R और R डैश।
ठीक है। इसी तरह से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आप तैयार कर रहे हो तो यही एसीटोटिक डायल्किल साल्ट आप तैयार कर रहे हो तो यही प्रोसीजर रहेगा। यहाँ तक डायल सेम प्रोसीजर रहेगा और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और HCl के साथ आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट देने के बाद आपको इस तरह से डायल्किल एसिटिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल के अंदर में आगे की स्लाइड के अंदर में आ रहा है। अल्किल एसिटिक एसिड तैयार कर रहे हैं अपन। So these are obtained by the interaction of appropriate means suitable alkyl halide with sodium acetoacetic ester and acid hydrolysis of the monoalkyl derivative। ठीक है, अल्किल एसिटिक एसिड तैयार करना है तो किस तरह से, दो स्टेप रहेंगे इसके अंदर। पहली सोडियम साल्ट तैयार करना, ठीक है, पहली रहेंगी सोडियम साल्ट तैयार करना, और सोडियम साल्ट तैयार करने के बाद ये सूटेबल अल्किल हाइड जो कुछ लग रहा है आपको स्ट्रक्चर देखकर उसके साथ आईएक्स के साथ में रिएक्ट करना, और उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस करना। मोनो अल्किल डेरिवेटिव अगर होना है तो एसिड तो मोनो अल्किल डेरिवेटिव के साथ में मोनो अल्किल डेरिवेटिव को एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। डायल्किल डेरिवेटिव आप बनाना चाह रहे हो, डायल्किल एसिटिक एसिड बनाना चाह रहे हो तो फिर एक स्टेप जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ रिपीट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, द आर ऑफ द अल्किल ग्रुप, ये आर ऑफ द अल्किल ग्रुप should be same as bonded to acetic acid in the acid to be acetic acid to be acid to be synthesized। ठीक है, आपको ब्यूटरिक एसिड तैयार करना है तो ये मॉलिक्यूल तो हम ये रिमूव करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल तो सेम रहेगा, तो अब ये देखना है कि आपको ये जो तैयार करना है वो आर ग्रुप आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, यानी RX लेना पड़ेगा। ये तो ये मॉलिक्यूल तो सेम रहेगा, पूरे अल्किल एसिटिक एसिड के अंदर में सेम मॉलिक्यूल रहेगा, सिर्फ आर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर देखकर, तो वो टाइप का RX आपको लेना पड़ेगा। आगे आ रहा है ये डिटेल के अंदर में। ठीक है, जैसे आप ब्यूटरिक एसिड तैयार कर रहे हो, ठीक है, ये ब्यूटरिक एसिड का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 COH। ब्यूटरिक एसिड आप तैयार करने जा रहे हो तो पहली स्टेप क्या है, सोडियम साल्ट तैयार करना। ठीक है, सोडियम ये आपको एग्जाम के अंदर लिखना पड़ेंगे इस तरह से, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन एग्जाम के अंदर में अगर पूछा जा रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा। पहली स्टेप है सोडियम इथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन करके सोडियम साल्ट तैयार करना, सोडियम साल्ट तैयार करना। ठीक है, सोडियम साल्ट तैयार हो गए। अब सोडियम साल्ट तैयार होने के बाद इट विल बी रिएक्टेड विद एथिल ब्रोमाइड, सूटेबल अल्किल हैलाइड लेना है हमको। ये तो स्ट्रक्चर पहले कांस्टेंट है, सिर्फ आर ग्रुप के अंदर में चेंज करना है। आर ग्रुप के अंदर में क्या चेंज करना है, आपको एथिल ब्यूटरिक एसिड चाहिए। ब्यूटरिक एसिड यानी दो अल्किल टू अल्किल 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 ग्रुप आपको एथिल ग्रुप होना चाहिए, इसलिए एथिल ब्रोमाइड आप यहाँ पर ले रहे हो। जरूरत ये स्ट्रक्चर तो है पहले ही आपके पास बना हुआ है लास्ट के अंदर में, अब जरूरत क्या है, इसकी है, एथिल ग्रुप की है, इसलिए एथिल ब्रोमाइड यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे, एथिल ग्रुप सोडियम साल्ट इट विल रिएक्ट विद एथिल ब्रोमाइड टू गिव दिस एथिल एसिटोएसिटिक एस्टर। अगर नाम लिख रहे हैं आपको रिमेम्बर हो रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं याद हो रहा है तो सीधा आप लिख सकते हो कि अल्किल डेरिवेटिव। ठीक है, अल्किल डेरिवेटिव। अब उसके बाद क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, ट्रीटमेंट विद concentrated NaOH followed by HCl। ठीक है, 2 molecules of water it will be added in this fashion। वो स्प्लिट अप किस तरह से हो रहा है वो आपको जहन में रखना है थोड़ा सा। CH3COH 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल तैयार होगा। अब दूसरा बचा ये CH3 CH2, ये CH3 ये CH3 CH2 और ये H यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2 COOH, ये क्या होगा, ब्यूटरिक एसिड। ठीक है, तो ब्यूटरिक एसिड बनाना है आपको, एग्जाम में अगर पूछ रहा है तो ये 2 स्टेप लिखना है। क्या स्टेप लिखना है, अल्किल इन द फर्स्ट स्टेप सोडियम साल्ट ऑफ अल्किल एसिटोएसिटिक एस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन विद सोडियम साल्ट, सॉरी सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, एंड
sodium salt of this sodium methoxide, it is reacted with ethyl bromide, and this ester, alkyl derivative of ester, it is subjected to acid hydrolysis. ठीक है, पहले स्टेप में सोडियम साल्ट तैयार करना, उसके बाद एथिल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करना, यहाँ पर आपको अल्किल डेरिवेटिव एस्टर का मिल जाएगा और इसका एसिड हाइड्रोलिसिस आपको करना है। ठीक है, तो डायल्किल एसिटिक एसिड इस तरह से तैयार किया जाता है। वैसे पहले मैं बता चुका हूं आपको, सेम स्टेप रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये डायल्किल एसिटिक एसिड ये भी हो सकता है जहाँ पर दो सिमिलर अल्किल ग्रुप्स है या डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स है, ऐसे ले सकते हैं अपन। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सोडियम किसी भी हालत में पहले तो सोडियम साल्ट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अल्काइलेशन ऑफ सोडियम एसिटोएसिटिक एस्टर इज डन विद आरएक्स। यहाँ पर आपने इसका अल्काइलेशन कर दिया, यहाँ पर ओ ग्रुप रहना चाहिए था, सॉरी ये गलत हुआ स्ट्रक्चर है, आप करेक्ट कर लो, CH3 C डबल बॉन्ड O रहना चाहिए था। यहाँ पर O को यहाँ पर ले लिया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, आगे करेक्ट कर लिया आपने। ठीक, तो यहाँ पर ये R ग्रुप अटैच हो गए। ठीक है, ओके, और उसके बाद और एक स्टेप रिपीट किया, रिपीट करने के बाद यहाँ पर आपको दूसरा भी अल्किल ग्रुप अलग अटैच करना। पहले हमने एथिल ग्रुप मेथिल ग्रुप अटैच किया था, सेकंड स्टेप के अंदर में एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट किया, तो एथिल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्या चाहिए आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। क्या करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करने के लिए, बोलते चलो बच्चों कुछ तो, हेलो, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको तैयार करना है तो क्या करना पड़ेगा, यस, एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, हाइड्रोलिसिस विद कॉन्सेंट्रेटेड EMH, हाइड्रोलिसिस विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस विद HCl। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, CH3COH, ये OH और H यहाँ पर। ठीक है, CH3COH, अब यहाँ से यहाँ पर H बाकी रह जाएंगे, तो ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, यहाँ पर CH। ठीक है, CH और ये CH3। ठीक है, और ये COOH, COOH। ठीक है, इस तरह से आपको ये मिलेगा एथिल मेथिल एसिटिक एसिड, एथिल मेथिल एसिटिक एसिड। ठीक है, इस तरह से तैयार करना। पहले जहन में रखो कि करना अपने को कौन सी रिएक्शन करना है। ठीक है, एसिड अगर तैयार करना है तो एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, अगर कीटोन तैयार करना है तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए पहले स्टेप के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, सोडियम साल्ट तैयार करना पड़ेगा, और सोडियम साल्ट तैयार करने के बाद सूटेबल अल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करना पड़ेगा, तो अल्किल डेरिवेटिव आपको उसका मिल जाएगा। अल्किल डेरिवेटिव को फिर क्या करेंगे हम, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और उसके बाद HCl के साथ में ट्रीटमेंट देंगे, तो आपको इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल हो जाएंगे। सक्सिनिक एसिड तैयार करना है हमको, ये स्ट्रक्चर है, सिंपल है, CH2COH CH2COH, CH2COH CH2COH, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है। ये सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बहुत ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ये, CH2COH CH2COH। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम सोडियम साल्ट पहले आपने तैयार कर लिया, इट इज रिएक्टेड विद एथिल क्लोरो एसीटेट, ये है एथिल क्लोरो एसीटेट, ये है एथिल क्लोरो एसीटेट। ठीक है, ये एथिल एसीटेट है, CH3CO C2H5 एथिल एसीटेट होता है।
इसमें का एक क्लोरीन हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये हो गया क्लोरोएथिल एसीटेट। और उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस विद सक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, सोडियम साल्ट तैयार कर लें। सोडियम साल्ट तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेलो, सोडियम साल्ट तैयार करने उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेलो, सोडियम साल्ट तैयार करने के लिए सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये क्लोरोएथिल एसीटेट के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा। नाम वगैरह याद रखने की आपको जरूरत नहीं, इतना ही लिखना है, क्लोरोएथिल एसीटेट के साथ में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ ए भी नाम देना है तो आप दे भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये डाइस्टर यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, एसिड चाहिए आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या करना पड़ेगा, एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो डाइस्टर यहाँ पर तैयार होगा उसका आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ओ एच एच सी एच थ्री सी ओ एच का एक मॉलिक्यूल, और एच ये सी एच टू सी ओ एच, सी एच टू सी ओ एच, और ये एच यहाँ से सी एच टू सी ओ एच, दो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल will be formed here. In this way, starting with alkyl acid to acetic ester and following the above step, we can get alkyl succinic acid. ठीक है, अल्किल सक्सिनिक एसिड आपको तैयार करना है तो और भी खास स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सक्सिनिक एसिड का ही देखना है, अल्किल सक्सिनिक एसिड की अपने को जरूरत नहीं। पहले स्ट्रक्चर उसकी स्टडी करो, स्ट्रक्चर याद रखो, जो भी पहले स्ट्रक्चर हमको मालूम होना चाहिए। जो भी आपको सिंथेसिस करना है तो वो जहन में रहना स्ट्रक्चर, तो आप सिंथेसाइज कर पाएंगे, उसके स्ट्रेटजी प्लानिंग कर सकेंगे आप किस तरह से हमको ये करना है। ठीक है, इसके लिए सक्सिनिक एसिड के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सोडियम साल्ट तैयार करेंगे। सोडियम साल्ट तैयार करने के बाद एथिल क्लोरोएसिटेट के साथ ट्रीटमेंट, और उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, डाइस्टर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। डाइस्टर को आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 2 3, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल बी एडेड हियर। इस तरह से ऐड हो रहे तो वो थोड़ा सा आप याद रखो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अपन स्टॉप हो जाती है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। यस, if you have any difficulty you may ask. Yes, in difficulty, ये पहले का भी याद रखो थोड़ा सा, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, ये क्या है, बेस है। ये बेस के सहारे आप सिंथेसिस कर सकते हो, या अगर आपके समझ में आ गया तो आगे के रिएक्शन आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये थोड़ा बेस है इसमें, एसिड हाइड्रोलिसिस, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, उसके लिए रिएक्शन कंडीशंस क्या है किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर में ऐड होते हैं, स्प्लिट अप किस तरह से करते हैं मॉलिक्यूल्स का, ये थोड़ा सा जहन में रख लो तो आगे के स्टेप आपके लिए आसान चलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं मीटिंग को लीव करता हूँ। टाइम है थोड़ा सा अपने पास, इफ यू आर एनी डिफिकल्टी इन आस्क। नेक्स्ट वीक के अंदर में अपने को सेमिनार लेना था, तो देखिए आप थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों को मिला के छोटे छोटे लेक्चर्स आप लोगों के
अरेंज करना है, आप वीडियो अपलोड करके भेज सकते हैं। फिर आपको प्राइजेस वगैरह दिए जाएंगे उसका एनालिसिस करके। छोटे छोटे 4-5 मिनट का लेक्चर आपको प्रिपरेशन करना है, जो भी आपको टॉपिक सूटेबल लग रहा है केमिस्ट्री में से वो सेलेक्ट करके थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लो, प्रिपरेशन बता दो सर को, देख करके अपन उसको कुछ करेक्शन है तो करेक्शन आपको बता देंगे। ठीक है, तो मैं मीटिंग को लीव करता हूँ।